गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ ਐਂਥਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਥਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਐਂਥਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਥਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਾਸਪੋਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਮਾਈਕਰੋ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਮੈਗਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਮੇਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟੋਫਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ यानी कि डिवेलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या फिर डिवेलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਂਥਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਥਰ ਵਿੱਚ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੀਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ। ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸੈਲ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲ ਸੀ। ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਲ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈਲ। ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਸੈਲ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈਲ। ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲੀ। ਹੁਣ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ, ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗੀ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚਾਲੋ ਦੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਬਟ ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ। ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਂਟੀਕਲਾਈਨਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਈਟਲ ਸੈਲਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਈਟਲ ਸੈਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈਲਸ। यानी कि पैरीक्लाइनल डिवीजन तो बाद अपने को दो तरह के सैल बन गए, एक पैराइटल सेल, एक स्पोरोजीनस सेल। ਹੁਣ ਪੈਰਾਈਟਲ ਸੈਲਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈਲਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਨ ਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰੈਂਜੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਐਂਡ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਨਸ, ਤਾਂ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਈਟਲ ਸੈਲ।
हजे तक अपने एंथर में वो गल नहीं की है भी एपीडर्मिस कितने है, एंडोथीशियम कितने है, मिडल लेयर्स नहीं हैगी अपने को। तो पेराइटल सैल्स डिवाइड होंगे कि एंटीग्लाइनल भी एंड पेरिग्लाइनल भी, तो बना के देंगे अपने को एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, लास्ट एपिटम। मतलब अपने को पेराइटल सेल्स तो ही बाहरली लेयर डिवेलप होंगे ने, एक जी अपने को आउटर लेयर्स ने ये आउटर ही डिवेलप होया। अगर आप इनर की गल करिए अपने को होंगे स्पोरोजेनस सेल, स्पोरोजेनस सेल लगी जो डिवाइड होंगे तो अपने को बन जाता है MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आप सिंपली कहिए पोलन मदर सेल। आपको नाम तो ही पता लग रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल भी अपने को जो पोलर ग्रेन डिवेलप होंगे इस तो ही होंगे, मतलब ये उन्होंने मदर है, मदर तो ही अगे अपने ऑफस्प्रिंग डिवेलप होंगे, मतलब इन्हों तो ही अपने को गैमीट्स बनने। बट एक गल ध्यान च रखनी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने को डिप्लॉयड होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने को होंगे डिप्लॉयड, तो अपने को गैमीट्स की चेंज होंगे ने, अपने को गैमीट्स हमेशा कि होने चाहिए हैप्लॉयड। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की होगी अपने को मायोसिस, मियोसिस में टू डिवीजन होंगे ने, पहले अपने को 2 सेल बने उस बाद फिर 2 सेल बने, ये बन गया अपने को पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमीटोफाइट। हुण इन्हां दी अगे अरेंजमेंट आई, पहला तो आपने सारा कुछ कर लिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, आपने बना लिया माइक्रोस्पोर मदर सेल भी अपने को डिवेलप हो गया जो कि 2N सीगा। जो भी मियोसिस होंगी अपने को की डिवेलप होंगे ने हैप्लॉयड गैमीट्स, अपने को मियोसिस हो गया अपने को हैप्लॉयड गैमीट्स डिवेलप हो गए। हुण आप नैक्सट करने की भी ये जो चारों सेल बने ने किवें अरेंज होंगे ने एक सेल में, ठीक है जी। और तुम मैं दस हुण आप डिस्कस करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। आपने डिवेलप कर ले से माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैं तुम दसा से माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि MMC। तो मायोसिस होंगी है तो उस तो 4 माइक्रोस्पोर्स डिवेलप होंगे यानी कि हैप्लॉयड नंबर वाले ये होंगे डिप्लॉयड नंबर, ये बन गया हैप्लॉयड नंबर। मियोसिस में हमेशा 4 सेल बनते। हुण अपने को नैक्सट इंपोर्टेंट पार्ट की है भी जो 4 माइक्रोस्पोर बने ने उन्होंने अरेंजमेंट किस तरह की होंगी। अरेंजमेंट का मतलब भी जो 4 माइक्रोस्पोर ने वो एक कैलस वॉल डिवेलप हो जाती तो उसके अंदर एक अपने को कंप्लीटली एवं पै जाते, या फिर ये माइक्रोस्पोर अलग होकर भी मैच्योर होना स्टार्ट कर देंगे। तो आप गल करते हैं हूँ अरेंजमेंट की, अपने को 5 तरह की आप टिपिकली अरेंजमेंट पढ़ते हैं। सब तो पहले टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डक शेप, टी शेप एंड लीनियर। इन्हों विचों एक क्वेश्चन नीटली या फिर एम्स दे विच आंदा हुंदा। की क्वेश्चन आंदा हुंदा है कि इन्होंने सारे जी 5 की 5 अरेंजमेंट में किस फ्लावर विच एको ही प्लांट विच किस दे विच मिलदियां ने, तो उसका नाम है एरिस्टोलोचिया एलिगेंस। मतलब भी आ सारी 5 की 5 अरेंजमेंट एको ही प्लांट विच मिलदियां ने, उसका नाम है एरिस्टोलोचिया एलिगेंस। इसका नाम याद करने का तरीका है एरिस्टोटल तो नाम याद कर लो। एरिस्टोटल कौन सी का फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एलिगेंस एक ऑर्गेनिज्म है यानी कि एरिस्टोलोचिया एलिगेंस। ये हो गया अपने को वो ऑर्गेनिज्म वो प्लांट जिसके 5 की 5 टाइप की अपने को अरेंजमेंट मिलती है। तो हूँ आप एक करके अरेंजमेंट पढ़ते हैं। सब तो पहला टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नाम तो ही पता लग रहा है, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह का होता है यानी कि आपको उपरों दिखेंगे 3 यानी कि ये पीछे भी एक होएगा सर, उसके पीछे भी आपको वहाँ दिख रही है चीज़ कि उसके पीछे भी एक और सेल। उस तो बाद आ गया आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल सारे एक डिस्टेंट नहीं पे होंगे एक दूसरे को, 1 2 3 4, ठीक है। उस तो बाद है डेकासेट। डेकासेट में क्या होता है 1 सेल, फिर 2 सेल, फिर 1 सेल। दैन अपने को आती टी शेप। टी शेप में ध्यान देखो ऊपर 2 सेल ने, फिर उस तो बाद अपने को लीनियर हो गई, ता करके आप की कह रहे हैं टी शेप। लास्ट में अपने को लीनियर सारे एको ही लाइन में पाए होंगे 1 2 3 4। कई बार क्या होता है ये अलग होने के बजाय एक कंपाउंड पोलन ग्रेन बना लेंगे। कंपाउंड पोलन ग्रेन, कंपाउंड पोलन ग्रेन का की मतलब है, मतलब ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर एको ही सैल के अंदर जिमें कि
कैलिस डिवेलप हुई हुई है, इन्हों आप कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्पोर, कंपाउंड पोलन ग्रेन। ये अलग अलग होने की बजाय एक सिंपल एक पोलन ग्रेन की तरह एक्ट करते हैं, जिस में 4 पोलन ग्रेन पे होंगे। ठीक है जी, ये तो सीगा अपने को अरेंजमेंट बारे। हुण अगर मैं इस नूं बाहर कड्डा तो दसा भी ये तो बाद पोलन ग्रेन किवें बनता है, मैच्योर किवें होंदा माइक्रोस्पोर तो पोलन ग्रेन, वो है उस साइड ते आपां दस दियां भी। मैं तुहानूं कहा सी माइक्रोस्पोर डिवेलप हो गया, यानी कि एक सैल है ये है एक सैल। उस तो बाद आपने बनाना है पोलन ग्रेन, हाँ है लास्ट में पोलन ग्रेन। यानी कि अजे तक अपने को मैच्योरेशन वाला प्रोसैस चल रहा है, अजे तक अपने को मैच्योरेशन बन रही है, अजे तक अपने को मैच्योर हो रहा है। तुसी देख रहे हो कि माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन हैगा जिहदे विच 2 लेयर्स ने, बाहरली लेयर होंदी अपने को एक्साइन, अंदरली लेयर होंदी अपने को इंटाइन। पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर 2 लेयर का बनया होंदा है, एक्साइन एंड इंटाइन। हुण इस दे विच इंपोर्टेंट गल की है, एक्साइन, एक्साइन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है पोलन ग्रेन का। एक्साइन जिहड़ी आउटर लेयर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हुण क्वेश्चन आंदा भी एक्साइन बनी किस तो होंदी है, एक्साइन बनी होंदी है स्पोरोपोलिनिन दी, स्पोरोपोलिनिन, पोलिनिन एंड क्यूटिन। बट ज़्यादातर किहदे बारे पूछा जांदा है, स्पोरोपोलिनिन बारे। क्वेश्चन आता होंदा है नेम द सबसटांस या फिर नेम द फैक्टर विच डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, तो उसका आंसर होंदा है नन। यह जी कोई भी चीज़ नहीं है जी स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके, ना वो हाई टैंपरेचर, ना pH, ना वाटर, ना प्रेशर, कोई भी चीज़ स्पोरोपोलिनिन नहीं तोड़ सकती। यानी कि स्पोरोपोलिनिन की करती है, प्रोटैक्ट करती है। ताही तो अज तक अपने को इस दे पोलन ग्रेन के आज तक कदे फॉसिल नहीं मिले है। फॉसिल का की मतलब होंदा है, फॉसिल होंदा जदों कोई चीज़ दबी जाती है तो बहुत टाइम बाद वो सिर्फ रिमेन्स मिलते हैं, रिमेन्स। बट पोलन ग्रेन हमेशा की मिलता है, इंटैक्ट मिलता है। इंटैक्ट मतलब कि पूरा उसी की तरह मिलता है, उस विच कोई चेंज नहीं आता। किस करके, सिर्फ स्पोरोपोलिनिन करके। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी कि पोलन ग्रेन को बचाती है। ठीक है जी, स्पोरोपोलिनिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहड़ी कि इनू पोलन ग्रेन को बचाती है फ्रॉम हार्श फैक्टर्स। उस तो बाद अपने को एक्साइन बारे गल होगी, दैन अपने को गल करनी है इंटाइन। आप दसता भी एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिनिन, और इंटाइन किस तो बनी हुई होती है, इंटाइन। इंटाइन सब तो पहले गल वो तो सी एक्साइन अपने को हार्ड सबसटेंस, इंटाइन होता अपने को इलास्टिक एंड थिन। अपने को इंटाइन होती है इलास्टिक एंड थिन। इलास्टिक एंड थिन यानी कि यह बहुत ही रफ सरफेस होएगी या फिर बहुत ही थिन सरफेस जी कि ईजिली ब्रेक हो सकती। बट बनी किस तो होंगी है, पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज यानी कि पेक्टिन प्लस सेलुलोज, सेलुलोज। और इसी तरह एक्साइन किस तो बनी सी, स्पोरोपोलिनिन एंड क्यूटिन। इंटाइन किस तो बनी है, पेक्टोसेलुलोज यानी कि पेक्टिन एंड सेलुलोज। ठीक है जी, हुन अपने को बनी होती है पेक्टोसेलुलोज। हम पेक्टोसेलुलोज कौन बना किस तो बनती होंगी है, इंटाइन। ठीक है जी, हम इंटाइन का काम की होंगे, इंटाइन का काम होंगे पोलन ट्यूब बनाना। हम पोलन ट्यूब का की काम की होंगे, मेल गैमीट्स नू कैरी करना कित्थे तक, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल। जदों आप पोलिनेशन पढ़ांगे, पोलिनेशन में क्या होंदा है, एंथर तो पोलन ग्रेन उड़ के किस ते चला जाता है, स्टिग्मा ते आ गया स्टिग्मा, इतने आगे गिर जूगा। उस तो बाद इन्हें पहुंचना इतने तक, तो एक ट्यूब डिवेलप होती है, और ट्यूब किस तो बनती है, इंटाइन। ठीक है जी, हुण आपां एक होर प्रॉपर्टी की गल करनी है उसकी, पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन भी आ जाओ अपने को जी एक्साइन होंगी है, एक्साइन जगह जगह तो ब्रेक होंगी है, अपने को पोर्स डिवेलप होंगे हैं, वो पोर्स में आप कहने हैं जर्म पोर्स। ये पोर्स का नाम होता जर्म पोर्स। हुण इन्हां दा काम की होंदा जर्म पोर्स का, मैं तुहानूं कहा भी इंटाइन की बनाती है पोलन ट्यूब। ये जर्म पोर्स के विचों ही इंटाइन डिवेलप करनी स्टार्ट हो जाते, तो की बना लेंगे अपने को पोलन ट्यूब।
यानी कि जर्म पोर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਐਂਡ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।